Hello students, in the previous lecture we have studied about the direction cosines of the line, correct? So there what we have seen, if the alpha, beta and gamma are the angles made by the line with the x-axis, y-axis and z-axis, then its direction cosines are given by what is cos alpha, cos beta and cos gamma, correct? And these direction cosines are denoted by what is small l, m and n. So that means we know here L is equal to what is cos alpha, M means what is cos of beta and N means what is cos of gamma. And remember, these are the standard notations. Alpha, beta, gamma, these are also standard notation. Alpha का मतलब क्या रहेगा, angle with the x axis ही रहेगा, beta यानी angle with the y axis रहेगा, gamma means angle with the z axis रहेगा. And also we have proved relation between this, and we have proved here what is L square plus m square plus n square is equal to 1, correct? That means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ये result भी prove किया था, ठीक है? तो today we'll see what is the meaning of direction ratios of the line, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे direction ratios of line, direction ratios of line. Okay, so see, suppose here L, M and N are the direction cosines of the line. Suppose L, M, N क्या है, direction cosines of the line है. And suppose there exist three numbers A, B, C. Suppose there exist three numbers A, B, C such that L divided by A is equal to M divided by B is equal to N divided by C. तो then ये जो numbers है A, B and C, these are called what is direction ratios. These are called what is direction ratios, or we can say direction numbers of the given line. Simple definition है, क्या है, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन है. अगर वहाँ पे ऐसे तीन नंबर एग्जिस्ट हो रहे ए बी सी सच दैट ये रेशियो इक्वल आना चाहिए, कैसा, एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी, तो देन ये जो ए बी सी है इसको क्या बोलेंगे वन, डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइन, ठीक है? तो क्या डेफिनेशन है, तो वी कैन से लेट एल, एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, ठीक है? if there exists numbers A, B and C such that what is L divided by A is equal to M divided by B is equal to N divided by C, then A, B and C are called what is direction ratios, or we can say direction numbers, of given line. This concept is very useful because this is required in the line and plane chapter. After this we have to study what is line and plane chapter. So in that chapter this concept is very, very useful. So that's why you have to remember this. And now see here, we want to find relation between what is here LMN and ABC. ये तो है वैसे, but suppose you know the direction ratios of the given line, we will see how to find its direction cosines. तो एक result prove करते हैं. We can say if L, M and N are the direction cosines of given line, या एक मिनट अपन ऐसा लेते हैं, इफ, हाँ तो ठीक है, रिजल्ट वन ये लेते हैं, इफ A, B and C are the direction ratios of given line, then find its
डायरेक्शन कोसाइंस। देखो यानी अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मालूम है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करना है, तो चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, ए बी एंड सी आर द क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन है। तो यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन। सपोज ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन है। तो देयरफॉर आपको मालूम है बाय डेफिनेशन, देयरफॉर वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। क्या डेफिनेशन है, अभी बताया मैंने, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा, देखो ये अगर एबीसी डायरेक्शन रेशियोज है और एलएमएन अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल डिवाइडेड बाय ए is equal to m divided by b is equal to n divided by c and let us suppose that this is equal to lambda। देखो ये एज्यूम कर रहे हैं अपन, let us suppose that this is equal to lambda, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, l divided by a is equal to lambda, m by b is equal to lambda and n by c is equal to also lambda, and that means we will get here l is equal to what is a lambda, इसको ले लेते 1, m is equal to we'll get here what is b lambda, we'll take this as equation 2 and n is equal to what we'll get here c lambda, we'll take this as equation 3। ठीक है, तो now we have to find value of lambda because we are assume here lambda, यानी ये रेशियो क्या है, each ratio equal to lambda लिया तो आपको lambda की वैल्यू फाइंड करना है। तो we know relation between element, क्या रिलेशन है उसी को यूज करते हैं। तो we know that what is L square plus m square plus n square is equal to 1। तो पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो अब अगर मैंने L की वैल्यू पुट की, ए लैम्बडा का स्क्वायर है तो डायरेक्टली लिख के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर m की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सी है व्हाट इज कॉमन, तो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन है तो विल गेट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हियर लैम्बडा स्क्वायर कॉमन है इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर विल गेट हियर व्हाट इज लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड देयरफॉर विल गेट हियर लैम्बडा इज इक्वल टू, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रूट में आ जाएगा तो स्क्वायर है तो इसको प्लस माइनस लेते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये होगी लैम्बडा की वैल्यू। अब ये वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 में पुट कर दो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies what will get here, L is equal to A into लैम्बडा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद में इक्वेशन 2 implies m is equal to, लिखते डायरेक्टली क्या है, बी लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी ये आ जाएंगी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड इक्वेशन 3 implies व्हाट इज n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। अब देखो ये जो रिजल्ट है इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको जस्ट थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं अपन। तो ये रिजल्ट को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन then its direction cosines are given by, direction cosines are given by what is L is equal to plus minus a divided by root a square plus b square plus c square, m is equal to plus minus b divided by क्या जाएगा यहाँ पे root a square plus b square plus c square and n is equal to again plus minus c divided by root will get here a square plus b square plus c square। तो देखो this result is important
ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। एंड देखो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन क्या बोलेंगे वहाँ पे कोसाइन का रिलेशन यहाँ पे भी, यानी अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन मालूम है तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगेन सम रिजल्ट्स विल टेक रिलेटेड टू दिस वन दैट विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, तो see अब we'll take now result second. Again here proof not important, but we'll see how we are getting that one. तो अब देखो आपको ये मालूम है, let us suppose that coordinate of point A is given as suppose x1, y1, z1. Okay, and coordinate of point B is given as what is x2, y2 and z2. Then देखो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी आर वी कैन से वेक्टर ए बी आर गिवन बाय क्या है, देखो वाइल प्रूविंग थ्योरम, वाइल प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वहाँ पे अगर आप देखेंगे वो जो थ्योरम प्रूव किया था वहाँ पे आपको क्या मिला था, कॉस अल्फा की वैल्यू मिली थी, क्या मिली थी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मिला था, बराबर है। कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या मिला था यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, एंड कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू क्या मिला था, z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या, ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओ एल, बट वेक्टर ए बी क्या था, लाइन ओ एल के डायरेक्शन में था, इसीलिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या रहते हैं, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या था इन्हें, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, कॉमा कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, एंड कॉस ऑफ गैमा is equal to z2 minus z1 by mod of vector ab. See here this result is also useful in case अगर आपने इसको a लिया है यानी तो आप इसको a1 a2 ऐसे भी ले सकते हैं ना, मगर कुछ जरूरत नहीं उसकी। चलो हाँ, तो ये रिजल्ट हो गया। अब देखो ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट में अपन दूसरा करते हैं, ये अपने को मालूम है, चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 ले लेता हूँ। Let us suppose that here vector E is या vector E cap will take is a unit vector along line AB, or we can say vector AB. Let us suppose that vector E क्या है, unit vector along line AB, or what is vector AB. Therefore आपको फॉर्मूला मालूम है, देयरफॉर ई कैप इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। ई कैप यानी क्या है, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर ए बी, अब आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वेक्टर ए बी यानी क्या आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बराबर है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो वी कैन राइट डायरेक्टली, विल गेट हियर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 and z2 minus z1, and this is divided by what will get, mod of vector ab. Okay, अब देखो this can be written like this, x2 minus x1 divided by, we can write here what is mod of vector ab, comma y2 minus y1 divided by mod of vector ab, क्योंकि ये सबको डिवाइडेड है, कॉमा z2 माइनस z1 बाय व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, यानी ये कोऑर्डिनेट्स है या वेक्टर है, इसको आईजेके के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए बी है, तो फर्स्ट टर्म बाय मॉड ए बी, सेकंड टर्म बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, थर्ड टर्म बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। नाउ सी फ्रॉम द इक्वेशन 1, इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन 1, व्हाट इज कॉस अल्फा, क्या है, x2 माइनस x1 बाय मॉड ऑफ ए बी, यानी ये क्या है, कॉस अल्फा है, कॉमा ये क्या है, कॉस बीटा है, और ये क्या है, कॉस ऑफ गैमा है, फ्रॉम वी कैन से इक्वेशन 1। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, कॉस अल्फा आई कैप
plus cos of beta j cap and plus cos of gamma k cap। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ई कैप इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, तो देखो यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन अगर मालूम है तो आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये रिजल्ट को आपको याद रखना है। इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो इफ एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू व्हाट इज कॉस ऑफ गैमा आर the direction cosines of line AB, or we can say vector AB, then unit vector E cap, we can say unit vector what is E cap along this direction बोलो तो along this line or vector AB is given by क्या रहेगा, वेक्टर E कैप इज इक्वल टू cos अल्फा I कैप प्लस cos ऑफ बीटा J कैप प्लस cos ऑफ गैमा K कैप, दैट मीन्स L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। देखो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। यानी अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन मालूम है या वेक्टर मालूम है तो आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। अब इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोलेंगे, अगर आप इसका मॉड फाइंड करेंगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, एंड वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसीलिए ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो देखो यानी अगेन हियर प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेंबर। देन नेक्स्ट रिजल्ट विल टेक रिजल्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी आर गिवन, अगेन विल मेंशन दिस वन। देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेट A is given as x1, y1, z1 and B is given as what is here x2, y2 and z2। ठीक है, then direction cosines of line AB or we can say vector AB are given by, देखो ये ऑलरेडी मालूम है, are given by, हाँ तो क्या है देखो ये cos अल्फा इज इक्वल टू क्या है x2 माइनस x1 है डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, cos बीटा इज इक्वल टू क्या है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है, बराबर है, और cos गैमा इज इक्वल टू क्या है z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है। ये आपको मालूम है, ठीक है, वी नो दिस वन, लेट बोलो या वी नो दैट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैंने अरेंज किया आप तो देयरफॉर देखो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको चलो 1 ले लेते, इसको भी अरेंज कर लेते, क्या जाएगा cos बीटा डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अगेन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। बाद में इसको ले लेते इक्वेशन 2 एंड cos ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो विल टेक दिस एज इक्वेशन 3। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एम्प्लाइज, देखो राइट हैंड साइड इज सेम, तीनों की राइट हैंड साइड सेम है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल एंड देयरफॉर व्हाट विल गेट हियर cos अल्फा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 cos of beta divided by y2 minus y1 and cos of gamma divided by z2 minus z1
राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। अब देखो इससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, एंड इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स L डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 m डिवाइडेड बाय व्हाट इज y2 माइनस y1 एंड n डिवाइडेड बाय क्या जाएगा z2 माइनस z1। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन है, और ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो आपको डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो बताया था मैंने, तो क्या बताया था कि अगर L बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी है, तो ये जो डिनोमिनेटर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, बराबर है। अब देखो यहाँ पे भी वैसे आ रहा है, L बाय दिस टर्म इक्वल टू एम बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू n बाय z2 माइनस z1 है। इसका मतलब यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन ratios we can say that, ठीक है, we can say that क्या बोल सकते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन ratios of line AB और वी कैन से वेक्टर ए बी। देखो ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी और वी कैन से वेक्टर ए बी, बराबर है। यानी इसका मतलब देखो, अब इसको भी अपन थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे, यानी अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी या वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। क्या है, इट इज गिवन बाय जस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए है। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट माइनस जेड कोऑर्डिनेट है। तो दैट्स व्हाई विल राइट दिस रिजल्ट अगेन लाइक दिस। तो therefore if coordinate of point A is given as x1 y1 z1, coordinate of point B is given as x2 y2 z2, then direction ratios of line AB or we can say vector AB are given by क्या है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। देखो अगेन दिस रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको a और b के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी फाइंड कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। तो क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट लेना है माइनस a के कोऑर्डिनेट, यानी डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और डिफरेंस बिटवीन द z कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यानी, ठीक है। तो ये हो गया यानी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो रिजल्ट फोर्थ, तो देखो रिजल्ट फोर्थ, तो इसमें तो लेट अस सपोज दैट, देखो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम, सपोज ये दिए x1 y1 z1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज गिवन एज व्हाट इज x2 y2 z2। देन आपको मालूम है व्हाट इज वेक्टर ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप वेक्टर ए बी लिख सकते, क्या आता है, यस, कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस ए, यानी ये आ जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। दैट मीन्स वी कैन से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। यानी अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें वेक्टर ए बी क्या रहा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। एंड जस्ट नाउ वी हैव प्रूव्ड कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी या वेक्टर ए बी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेक्टर अगर दिया है तो उसके जो कोएफिशिएंट रहेंगे, यानी i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, यानी x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, यानी ये जो है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए बी है। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख लेते हैं कि हियर x2 माइनस x1 कॉमा
y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन क्या है, रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी है। यानी इसका मतलब वेक्टर ए बी बोलो या लाइन ए बी है, और वी कैन से वेक्टर ए बी है। यानी इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपको वेक्टर मालूम है तो आप उसके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो आप वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इन जनरल लिखता हूँ, तो इसको ये रिजल्ट को अपन इस तरह से लिखेंगे, समझा ना, कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए, मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए बी लिख रहे हैं अपन, अगर डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो वेक्टर ए बी है तो डायरेक्शन रेशियो। तो इसीलिए मैं इस तरह से लिखता हूँ कि इफ, अब इसको ये ए रहेगा, ये बी सी, ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, देन एनी वेक्टर along, देखो एनी वेक्टर वी कैन से, इसको अपन कोई भी नोटेशन ले लेते, यू ले लेते, along लाइन ए बी इज गिवन बाय, क्या जाएगा यहाँ पे, वेक्टर u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एंड वी कैन से कॉन्वर्सली, देखा नहीं, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो आप ये डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। कॉन्वर्सली अगर आपको वेक्टर मालूम है तो आप उसके डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, सपोज यहाँ पे 2i प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो देन वी कैन से दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए क्या रहेंगे, 2, 3 माइनस 5। यानी आई जे के जो कोफिशिएंट रहेंगे, दीज आर नथिंग बट क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर या लाइन इन विच दैट वेक्टर इज गिवन। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे रिजल्ट फिफ्थ वी कैन से, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 j कैप, a1 a2 ले लेते इसको, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, इसका मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 b1 a1 a2 a3 है, और वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, b1 b2 और b3 है। तो देन आपको ये मालूम है फार्मूला कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू, देन या इस तरह से लिख लेते हैं, इफ दिस वेक्टर्स आर गिवन आर एनी टू वेक्टर्स and if theta is angle between them, angle between we can say them, ठीक है, तो then angle between them, हाँ, तो then आपको ये रिजल्ट मालूम है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, वेक्टर a डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, बराबर है, ये आपको रिजल्ट मालूम है ऑलरेडी। और यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आपको मालूम है a डॉट बी कैसे लेना, a डॉट बी याद है ना, डायरेक्टली बताया भी था मैंने, क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस क्या आ जाएगा a3 b3, बराबर है, एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मॉड ऑफ, हाँ मॉड ऑफ यानी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 स्क्वायर और बाद में प्लस a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस व्हाट इज b3 स्क्वायर। ये रिजल्ट है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। तो अब देखो इसको थोड़ा अलग सेंस में लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या है, आपको अभी बताया कि कोई भी वेक्टर दिया होगा तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे, दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। यानी अगर आपको वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन
टू वेक्टर लिख सकते हैं, या अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन मालूम है तो इसीलिए देखो ये रिजल्ट को मैं इस तरह से लिखता हूँ, इसका भी बाद में काम करने वाला है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग डायरेक्शन, लाइंस बोलो या वेक्टर भी बोल सकते हैं, लाइंस ऑब्लिक वेक्टर कर लेते हैं और से वेक्टर्स, ठीक है, लाइन और वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C1, नहीं क्या लिया अपन ने, A1 A2 A3, ठीक है। देखो A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, ठीक है। देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, A1 B1 प्लस क्या आ जाएगा A2 B2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे A3 B3 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। देखो ये अगर आपको कोई भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो ये फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एंगल बिटवीन द टू लाइन्स फाइंड कर सकते हैं, या एंगल बिटवीन द, डेफिनेटली क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर, अब ये तो क्लियर है कि अगर आपको ये मालूम है तो यहाँ पे देखो इफ टू लाइन्स, या इफ बोलने की वजह वी कैन से टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली, क्या हो जाएगा, अब इससे डायरेक्टली लिखते हैं अपन, क्या हो जाएगा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री है यानी 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली क्या आ जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। एंड देखो यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू 90 आएंगी, यानी cos 90 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। यानी अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस मालूम है और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट रहेगा। और टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली क्या रहेगा, यहाँ पे A1 बाय B1 इज इक्वल टू A2 बाय B2 इज इक्वल टू A3 बाय B3। देखो ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो ये रिजल्ट भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखो इसमें एक भी इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस रिजल्ट्स, and remember these results are very very useful in the next chapter also, that is line and plane वो पढ़ना है, तो उसमें ये रिजल्ट का काम करने वाला है। ओके, तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।